Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope so that all of you are doing well at your homes. So this is Fajia Zia, and in today's video we are going to do the problems or the numericals of chapter number 7. And all of you know very well that we have done the theory of the chapter number 7, but in today's class we are going to start the numerical. Okay, so now let's start with the problem number 1. All of you have to do give 100% concentration over here. So here I am going to read the numerical first of all. 7.1 problem है. At what speed must an object travel in a circle of radius 2 meter? क्या कह रहे हैं, किस स्पीड पे एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे सर्कुलर रेडियस है जिसका और सर्कल में, और जिसका उस सर्कल का रेडियस कितना है 2 मीटर, टू एक्सपीरियंस अ सेंटीपिटल acceleration of 9.8 meter per second square. Here all of you can see that the centripetal acceleration is given to you. There is a format to write the numerical. numerical को करने का कोई एक format होता है, ठीक है. Here I have written that format also. So the format is that first of all you have to write data. Okay, first of all you have to write data and then you have to give the heading of given, required, formula and solution. So basically they are the 5 headings which you have to put in the numerical, because there is a proper way to write the numerical. Okay, so when I will write the data, in the data I have 2 things, the given and the required. So if you see in the question that what parameters are given to you in the question. So if all of you can see over here, must an object travel in a circle of radius 2 meter. It means the radius is given to you. So it means I can write radius with r, small r equals to 2 meter. Okay, now the second thing which is given to you is centripetal acceleration, and you all know very well that how can we represent the centripetal acceleration with the small a, and नीचे हम क्या लगा देते हैं, छोटा सा c लगा देते हैं. So basically this c is representing centripetal and this is a which is representing acceleration, and we have discussed this before also. So basically this is centripetal acceleration, and what's the value of centripetal acceleration, which is 9.8 meter per second square. Okay, now what we have to find out, what factor will come or what parameter will come under the heading of required, which is which parameter you have to find out. So here all of you can see that at what speed. So it means that you have to find out the speed. Okay, when you have to find out the speed, you know very well that how we represent your speed. We represent the speed with v. तो यहाँ पे हमारे पास v आ जाएगा, v equals to question mark. Okay, now the first before writing the formula, look at the given and the required. 2 things are given to you, which is AC and R, and the required thing is V. अब आप देखिए आप कौन सा फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करेंगे जिसके अंदर आपके पास ये तीनों फैक्टर्स आ जाएं, ठीक है. सो द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज, वी हैव डिस्कस इट बिफोर ऑल्सो. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v² अपॉन r. तो इन दिस यू कैन सी दैट v इज द अननोन फैक्टर एंड द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स आर नोन. तो मतलब v हमारे पास यहाँ पे अननोन है जो कि हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है. बट द AC एंड द R, दीज 2 फैक्टर्स आर नोन. हमें ये ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है, ठीक है, जिसको मैंने गिवन में करके लिख भी दिया है. नाउ स्टार्ट डूइंग द सोल्यूशन. आपने फॉर्मूले की हेडिंग डाली, सोल्यूशन के बाद आप सबसे पहले वही जो फॉर्मूला आपने लिखा होगा आपने उसी को कॉपी डाउन नीचे करना होगा, ठीक है. यहाँ पे आपने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. इसका मतलब वेलोसिटी को आप राइट साइड में न्यूमरेटर में ही रखेंगे और उसका जो डिनोमिनेटर का फैक्टर होगा उसको आप दूसरी साइड पे लेकर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है, r. तो r को जब आप दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के साथ. तो जब वो r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, AC r इक्वल्स टू v². अब मुझे v² को फाइंड आउट करना है, तो मैं v² को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आती हूँ. मतलब मैंने अपनी राइट हैंड साइड को लेफ्ट बनाती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, v² इक्वल्स टू AC r. अब मुझे अब मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करती हूँ. तो AC के क्या वैल्यू है, 9.8, ठीक है. यू कैन सी ओवर हियर AC की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 9.8. R की वैल्यू कितनी गिवन थी, 2. तो मतलब 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. तो जब आप 9.8 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे कैलकुलेटर पे, लेट मी शो यू ऑल्सो. हियर वी हैव कैलकुलेटर. मैंने क्या कहा, 9.8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है. जब मैं 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आया, 19.6. ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर हियर.
सो आई विल पुट दिस 19.6 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 19.6 के। नाउ द थिंग इज डेट हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर है, सही है। तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, ओनली वेलोसिटी की। यहाँ पे तो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला था स्क्वायर ऑफ द स्पीड फाइंड आउट करनी है, सिर्फ स्पीड बोला, तो इसका मतलब सिर्फ v निकालना है। तो जब मैं सिर्फ v को निकालूंगी तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगी तो v स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर रूट आएगा तो वो इस तरह से आएगा, यू कैन सी ओवर हियर। तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचेगा, v, और राइट हैंड साइड के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा तो वो 19.6 का स्क्वायर रूट। अब जब आप कैलकुलेटर से 19.6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेट मी टेक इट आउट, देखेंगे ये वाला आपने बटन प्रेस किया एंड देन आपने क्या लिखा, 19.6। 19.6 का आपने स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास क्या आया, 4.427188। तो मैं यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेती हूँ, 4.427, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया, 4.427 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम वेलोसिटी इस क्वेश्चन की हमने फाइंड आउट कर ली। सो हियर वी आर डन विद द प्रॉब्लम 7.1। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम 7.2। अब हम जल्दी जल्दी से 7.2 कर लेते हैं, बिकॉज द हियर अगैन द क्वेश्चन इज द सेम बट द वैल्यूज आर द डिफरेंट। सो द प्रॉब्लम इज अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी है जो कि एक कर्व से मूव कर रही है, ठीक है, एक कर्व पे मूव कर रही है, और जब वो मूव कर रही है तो उस टाइम उसकी क्या वेलोसिटी है या क्या स्पीड है वो आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे कैसे पता चला कि ये वेलोसिटी है या स्पीड है, इसके यूनिट से पता चला, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं बताया कि गाड़ी की स्पीड ये है या गाड़ी की वेलोसिटी है। जब कभी ऐसे होगा तो आपने किसको देख के पहचानना है, यूनिट को। तो यूनिट आपको क्या गिवन है यहाँ पे, 20 मीटर पर सेकेंड, विच इज मीटर पर सेकेंड ना। तो मीटर पर सेकेंड बेसिकली इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको, 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज 50 मीटर। अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जो उसका गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं कि जो आपका सेंटर से लेकर किसी भी सर्कल के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज बेसिकली रेडियस। तो यहाँ रेडियस आपको कितना गिवन है, 50 मीटर, ठीक है। तो मैं आर को क्या लिख दूंगी, 50 मीटर। अगेन यहाँ पे आप इसका यूनिट देख सकते हैं, मीटर है, तो इसका मतलब ये रेडियस होगा। कैलकुलेट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपने रिक्वायर्ड में क्या लिख दिया, AC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अगेन यू कैन सी ओवर हियर दैट आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विद अ प्रॉपर फॉर्मेट, data given, required solution, formula solution, and then and at the end of the statement आपने क्वेश्चन के एंड में अगर स्टेटमेंट बन रही है तो यू कैन राइट इट ऑल्सो, इट्स एन एडिशनल पॉइंट। अब आप देखें कि आप गिवन और रिक्वायर्ड को देखें कि आपके पास कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो आप यूज़ करेंगे तो आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। तो सेंटीपिटल का एक्सेलरेशन का अपना ही एक फॉर्मूला है विच इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैंने फॉर्मूले में क्या लिख दिया, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैंने ये लिख दिया, वी नो डैट, और यू कैन राइट इट दैट द फॉर्मूला ऑफ द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज AC इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जिस तरह से मैंने लिख दिया आप ऐसे लिख दें या दूसरे तरीके से, ठीक है। तो AC की जगह पर AC आ गया, इक्वल्स टू की जगह पर इक्वल्स टू आ गया। नाउ वी स्क्वायर अपॉन आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v की क्या वैल्यू थी, 20। तो 20 का स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर, तो मैंने 20 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, आर में यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आर की वैल्यू 50। तो आप यहाँ पे आर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 50। तो 20 स्क्वायर अपॉन 50, आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू ओवर हियर ऑल्सो, यू कैन सी ओवर हियर दैट दिस इज द स्क्वायर, ओके। 20 का स्क्वायर 400, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400 आ गया। मैं क्या करूँगी, 20 का स्क्वायर 400 पुट करूँगी, 50 की जगह पे 50 लिखूँगी। AC की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 = 5, 5 8 = 40। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, जो यूनिट होता है वही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का यूनिट होगा, विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंड में आपने एक स्टेटमेंट लिख देनी है, द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से देख कर लिखी मैंने, यहाँ से। द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, जो भी आपका आंसर आया आप वो लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व हो गया।
Okay class, now we are going to move problem number 7.3. 7.3 की तरफ हम move forward हो रहे हैं. All of you can see the question on the screen also. Let me read it out and then I will explain you. Okay. A proton of mass 1.67 exponent minus 27 किलोग्राम. एक प्रोटॉन है जिसका मास आपको गिवन है इतना, ठीक है. तो मैं क्या लिख दूंगी, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम. दिस विल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ गिवन. गिवन की हेडिंग में आएगा ना, कि आपको ये पता है, ठीक है. इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर. क्या कह रहे हैं, एक सर्कल के रेडियस में वो मूव कर रहा है प्रोटॉन, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर. तो मैंने रेडियस करके लिख दिया, रेडियस इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है. दूसरा क्या लिख सकती हूँ, रेडियस की जगह स्मॉल आर. स्मॉल आर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. यू नो ऑल वेरी वेल दैट 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. हमारा 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि 100 सेंटीमीटर लिखूँ या 1 मीटर लिखूँ, बराबर है. मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर को क्यों नहीं आगे लेकर चली, क्यों, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट वी हैव टू टेक द एसआई यूनिट्स. हमने एसआई यूनिट्स में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. ठीक है. और सेंटीमीटर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, हमारे पास मीटर एसआई यूनिट होता है. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन. क्या कह रहे हैं, न्यूटन. एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है, किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर. और वो फोर्स कितनी है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन. तो फोर्स की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन. डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. और वो फोर्स जो है किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. ये अगर सर्कल है आपके पास, सर्कल के सेंटर की तरफ, डायरेक्टेड का मतलब इनवर्ड है वो. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन. यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी, प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. तो यहाँ पे रिक्वायर्ड में आप क्या लिख देंगे, वेलोसिटी. v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अब आपने अगेन, आपके पास ये 3 चीज़ें आपको गिवन और रिक्वायर्ड में आपके पास ये. अब आपने देखना है आप कौन सा ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि आपके पास जो है फोर्स मतलब वेलोसिटी का फैक्टर आ जाएगा. तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू mv² अपॉन आर. सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, mv² अपॉन आर. ठीक है. तो मैं अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मास मुझे पता है, वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, आर मुझे पता है, एफ मुझे पता है, मतलब सब कुछ पता है, सिर्फ एक फैक्टर अननोन है. तो इसका मतलब मैं ये फॉर्मूला बहुत इजीली यूज़ कर सकती हूँ कि इसमें जो फैक्टर्स गिवन है वो सब हमें पता हैं. ठीक है. तो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ले लिया. अब जब सोल्यूशन में स्टार्ट करूंगी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv² अपॉन आर. मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, वेलोसिटी की निकालनी थी. तो पहले मैंने वेलोसिटी को एक तरफ रख दिया, बाकी जो इसके साथ वेलोसिटी के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी या डिवाइड हो रही थी उसको मैं दूसरी तरफ ले गए. मल्टीप्लाई कौन सी टर्म हो रही थी, मास वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, तो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड. इसलिए डिवाइड कौन सी टर्म हो रही थी, राइट हैंड साइड पे रेडियस. रेडियस डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो मेरे पास वेलोसिटी की का फैक्टर क्या आ गया, एफ सी मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन एम. तो मैं वेलोसिटी को यहाँ पे ले आती हूँ विच इज v² इक्वल्स टू. अब सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या वैल्यू अभी गिवन थी आपको, 1 एक्सपोनेंट माइनस 12. तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 आ गया. रेडियस क्या था, 1 मीटर. मैंने कहा कि हम सेंटीमीटर की यूनिट्स को नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है. बिकॉज वी हैव टू यूज़ द एसआई यूनिट. तो 1 मीटर मैंने ले लिया. तो रेडियस की जगह पे क्या लिख दूंगी, 1 मीटर. आप आ जाते हैं डिनोमीटर में क्या, अच्छा यहाँ पे डिनोमीटर में क्या फैक्टर था, मास. मास मेरे पास कितना गिवन है मुझे, 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम. ठीक है. ये मास गिवन है तो मैंने डिनोमीटर में मास भी लिख दिया. जब आप 1 अब देखिए ये दोनों ऊपर जो है 2 दफ़ा 1 है, तो 1 1 सा 1 हो जाएगा. तो 1 अपॉन 1.67 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा. किसको डिवाइड करेंगे आप, 1 1 सा 1 अपॉन 1.67. अभी एक्सपोनेंट्स को छोड़ दें, ऊपर भी एक्सपोनेंट है नीचे भी एक्सपोनेंट है, दोनों को छोड़ दें. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5988. ठीक है. अब आपके पास क्या है, ऊपर क्या वैल्यू है, एक्सपोनेंट माइनस 12. ऊपर क्या वैल्यू है, एक्सपोनेंट माइनस 12. सही है. और नीचे क्या वैल्यू गिवन है, माइनस 27 एक्सपोनेंट में. तो नीचे माइनस 27, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 27. तो जब आप प्लस -12 + 27 करेंगे आपके पास एक आंसर आएगा विच इज़ 15.
ठीक है, आपके पास क्या आंसर आएगा, -12 + 27 को करके सॉल्व 15 आएगा। तो इस तरह से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, v स्क्वायर की। अगेन यू कैन सी ओवर हियर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी और स्क्वायर ऑफ द स्पीड। सो आई विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। व्हेन आई विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, then this v square will be cancelled out with the square will be cancelled out with the square root, and the last term which comes up over here will be v. And on the right hand side you can see that I have made the square root. Why? Because again I have taken the square root on both side. Okay, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 2.44 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स दैट द वेलोसिटी विथ विच द प्रोटॉन विल मूव इज द 2.44 exponent 7 meter per second. In the end, you can write the statement also. The velocity of the proton is 2.44 exponent 7 meter per second. So here we are done with problem 7.3. Okay, so now we have done the three numerical 7.1, 7.2, 7.3. But now here we are moving forward again on 7.4. Okay, 7.4 का question क्या है? Let me read it out over here. Then I will explain you. A string 2 meter long. एक string है, एक कोई भी स्ट्रिंग ले लें आप, जिसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको, 2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, एल से क्या आ गई, लेंथ मेरे पास आ गई 2 मीटर। अभी ये आर छोड़ दें। इज यूज टू बिल्ड अ 200 ग्राम स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब 200 ग्राम किससे क्या है गिवन है आपको, मास। तो इसका मतलब मैं मास की जगह पे क्या लिख दूंगी, 200 ग्राम। ठीक है, अब 200 ग्राम है। अगेन ग्राम जो वैसा यूनिट नहीं होता तो मुझे ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, ग्राम से किलोग्राम में जाना पड़ेगा। ग्राम से किलोग्राम में जब जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय 1000। क्यों, क्योंकि हमारा 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, और ग्राम से किलोग्राम में जाना होता है जब भी हमें राइट से लेफ्ट जाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो मेरे पास को सॉल्व करने से 0.2 kg आ गया। तो मतलब मास मुझे क्या गिवन है, 0.2 kg। अब कह रहे हैं एक जब जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल पे मूव कर रहा है और किस स्पीड से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, स्पीड, वेलोसिटी क्या गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। आपने क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी। यू ऑल नो वेरी वेल, मैंने जब टेंशन का टॉपिक पढ़ाया था या टेंशन इन स्ट्रिंग का भी टॉपिक पढ़ाया था चैप्टर नंबर 3 या 4 में, तो मैंने वहाँ पे आपको ये बात बहुत ज्यादा क्लियर की थी कि टेंशन बेसिकली हमारे पास क्या कंसिडर होती है, फोर्स के। तो मैं टेंशन बोलूं या फोर्स बोलूं, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, टेंशन बोलूं या फोर्स बोलूं, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने टेंशन को फाइंड आउट करना। तो इसका मतलब टेंशन के बजाय मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि मुझे फोर्स फाइंड आउट करनी है तो मैं कौन सा ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करूँ जिसमें मुझे फोर्स फाइंड आउट करनी हो और मुझे लेंथ गिवन है, मास गिवन है, वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे हम सेंटीमीटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास लेंथ कुछ भी नहीं होती है। लेंथ बेसिकली हमारे पास क्या है, देखें अगर आप यहाँ, ये क्वेश्चन क्या था कि एक स्ट्रिंग है जो कि जिसके एंड पे क्या बांधा गया है, एक स्टोन बांधा गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टोन सपोज कर लेते हैं कि जब मूवमेंट के दौरान ये एक स्टोन है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है। अब इस स्टोन का यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा, रेडियस ना, तो ये इसको मैं बेसिकली क्या ले लूंगी, रेडियस। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमने कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि जिसमें मुझे रेडियस गिवन हो, मास गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, क्या निकालनी हो, फोर्स निकालनी हो। सो वी हैव ओनली वन फॉर्मूला विच इज सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, mv²/r। सही है, तो मेरे पास टेंशन की जगह पर क्या आ जाए, फोर्स की जगह पर क्या आ गया, टेंशन आ गया, क्योंकि मुझे टेंशन फाइंड आउट करनी थी। मैंने मास लिख दिया, वेलोसिटी अगेन लिख दिया, एंड देन आर। अब मास आपको क्या गिवन था, 0.2 kg। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा यूनिट यूज करना है। तो मास की जगह पे मैंने 0.2 लिख दिया, वेलोसिटी की जगह पे मैंने 2 लिख दिया, विच इज द 2 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है यहाँ पे। डिनोमिनेटर में आर गिवन है, आर यहाँ पे 2 मीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ना 0.2 अगेन आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो अब आपके पास डिनोमिनेटर में तो 1 बचा, जिसका मतलब मैं इसको कुछ भी नहीं लिखूंगी। तो 0.2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4/2 था, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया था तो 2 आ गया। तो 2 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4 न्यूटन। ठीक है, 0.2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी हमारे पास,
0.4 न्यूटन। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी जस्ट हैव टू डू 4 न्यूमेरिकल्स। आज की वीडियो में हमने बस 4 न्यूमेरिकल करने थे। अब इसी चैप्टर के जो है वो हमारे पास बाकी न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, 4 और न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, बट वी विल डू दोस न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल एंड लेस यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।